generated through a school Yes, must be for having this. APAR IDs, all the schools have generated APAR IDs. If जी. for any child APAR ID has not been generated, you put no. If you have APAR ID, school bacha must contact the school, take the APAR ID from the school and fill the form. Okay, जी. If it is not filled, then what Then will be the you put consequence? there no. There is an option coming. APAR ID. Do you have APAR ID? Put there no. जी, जी. Okay, Okay, and sir. you can Thank you, go, sir. go ahead. Next question, please. My humble request, unmute only when you are asking the question so that others do not get disturbed. Hello. Good Yes, evening. please. Yes, yes, please. Vandana ma'am, you can ask your question, please. हाँ जी, सुनील sir. My question नमस्कार, is नमस्कार मैम, नमस्कार. बताइए मैम. Nice to talking to you. Yes, मेरा yes. एक simple सा query है. Like students are worried that those who are not having maths as a subject, Yes. whether they can apply for BCom honors. Now in DU they can't apply. As per the present rule, they हाँ. can't apply. Though Hmm. we have written to DU, I'm telling Okay. you, we have written, and I request all of you, all the commerce teachers, all the principals to write to DU. Okay. Maybe they allow this year. We have requested, if even they do not want, please allow this year and the next year, so that the bacha who have or left mathematics on the basis of their old policy, they should not suffer. But for example, they want to go for BCom honors. Is there any option that they can apply for any other university? Yes, the best university in this situation is Banaras Hindu University, one Okay. of the top university of India. They can go for Banaras Hindu University BCom honors without mathematics. Okay. Done. Okay. Thank you. Thank you. Next question, please. So one more query, Yes. as ma'am asked, Vandana ma'am. Good evening to all first, Good evening. and to you also, sir. So basically, this mathematics was one concern, but is it necessary to have a standard or applied mathematics? Any of them course? Any mathematics will work. There is no standard or applied in case of CUT. In case of CUT, there is only one mathematics, and it can Yeah. be any. Any, yeah. So I mean, today only they asked, and I said it should be one only. So I gave the Yes. right answer. Yet I wanted to confirm that. And Okay. one more thing, sir, like CUET, in case a child want to go for some, there are colleges who are say giving entrance exam, which are taking entrance exam. Yes. So for that, those colleges also CUET is mandatory. No, ma'am. First of all, there can be a college who may be taking their own entrance, and they can be taking on the basis of CUET also. You have to give me the name of the specific college so that I can Okay. tell you whether they are taking on the basis of CUET, or they are taking on the basis of their own, or they are taking on the both. Okay. So the This is what I mean. college have their own policies. Even I Sir. cannot tell you for every college. There are more than 1,000 True. colleges in India, but for True. maximum good colleges, I know. And better you go on the website of that specific university or the college. It is specifically written on every website whether they are Mhm. accepting CUET score, or they are taking on the basis of their own score, or they are accepting both. Mhm. In either of the case, sir, 12th result would be accepted then, because if they are taking entrance, means 12th result they'll be Ma'am, keeping in mind then. these are very hypothetical questions. I can tell you there are many universities which Sir. are accepting bachas on 2, 3, 4, 5 backgrounds. They are Okay. taking bacha on the basis of CUT also. They are taking bacha on the basis of JEE also. They are taking bacha on the basis of their own examination also. They are taking admission on the basis of 12th result also. I give you Oh, example, one of the top university of India, Triple IT Hyderabad. Now, जी Triple sir. IT Hyderabad is taking admission on the basis of JEE also, their own Mhm. examination also, class 12th results also, and CUT also. So please, Okay. it depends upon which college, which course you are talking about. Sir. Otherwise, I can't give you the answer for this question. Sir. जी sir. Okay. Thank you, Any sir. other? Okay. Next question, please. My humble request, this session I have organized only to handle the queries. So if you will not ask, then I have to close the session. Please, my humble request to all of you.
Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good So this is evening. Divya Agarwal here. Yes, ma'am, please. Sir, if the child has to apply for Delhi University BCom honors, and if the child wants to apply for College of Business Studies, that is Ye- Shahid Sukhdev Singh College. Yes. So right now they just have to register for CUET, and later on the forms have to be filled separately for the colleges. Yes, first they have to register for CUET. The courses which you have mentioned for those mathematics is essential. So Yes, please, sir. That I know. for registering CUET, they must be filling general test because for Sahih Sukhdev Singh, general test is required. Yes, sir. Then Yes, sir. language is required, mathematics is required. And then you can Okay, take sir. the domain whatever you want. And then after CUET, DU will release their own form, CSAS. In that, they have to tick mark the course and the college. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Next question, please. Thank you, sir. Thank you. My humble request, do ask the questions. So basically, you are saying कि in CUT they have to appear for that mathematics portion also. Yes, for math. If they want to go for BCom honors, as per today's policy, I'm telling you, tomorrow it may change because everybody is writing Delhi University to change the policy for BCom honors. So tomorrow it can change, but today it is essential to have mathematics for BCom honors, and for BMS and BFIA and BB, it was essential and it is essential. Sir, so means one is your GS exam, one will be your mathematics, and apart from that, whatever subject you want to apply for. Ideal combination So for any child. Ideal combination for any child. If Sir. you are talking about commerce, it should Sir. be one language, 3 domain plus general test. Ji, sir. Because in that situation, bacha will be eligible for maximum of the courses. Okay. So one language, one GS, and And 3. domain. And if bacha have mathematics should be one of the domain. Okay. For honors, of course, yes, sir. Yeah. Mathematics. Yes. Next Uh, question, please. Good evening, sir. Earlier, I have It will be better if you will keep your video on. I will be able to see you. I don't think you should be having any hesitation in keeping your video on. Please. Yes, ma'am. Yes, do ask, ma'am. Unmute yourself. Sir, earlier I have read somewhere that now maths has been replaced by accountancy. A child should either have maths or accountancy for BCom honors Yes. from DU. Yes. So is it changed? Is it changed now? Yes, ma'am. It was either maths or accountancy. Yeah, right, From sir. 2022 till date. Right, sir, right. Suddenly they have changed. I am Yes, again sir. repeating, we all have written mails to DU to revert to their old policy, at least for this batch, so that bacha should not suffer. I don't know if DU is going to hear or not, but if you ask me today, mathematics is compulsory for BCom honors in DU. Okay, sir. In DU only I'm talking about. Yes. So DU will consider basically your mathematics, accountancy, No, and BS. again, you are misreading. You are misinterpreting. DU is not Okay. requiring accountancy. Okay. DU Oh, is maths only. For DU is honors, they are requiring requiring maths one language, one mathematics plus any two. I'm repeating, only. Okay. one language, One language. one mathematics plus any two. It can be physics, chemistry, it can be accounts, Okay. economics, it can be economics, business study, it can be business study and physical education, it can be Okay, history sir. or geography. Okay. And what about then general test, sir? General test is not required for BCom honors. Right, sir. Right. General test is not required for any of the honors courses. I'm repeating. General Right, sir. test is not required for any BSc honors, BCom honors, Eco honors, physics honors, history honors, geography honors. Any honors courses does not require general test in DU. Right, sir. Right. Next question, please. Thank you, sir. Next question, please do ask. My humble request, you use this platform, it will help you. Vipinji, your question, please. Good evening, sir. Namaste. Namaste. Sir, thank you so much for providing me the opportunity. Sir, actually, my question is a little different. Sir, actually, I was searching in Google
and many more means things. I just want to ask you one thing. What is the basically difference between BCom honors and BCom? Because I many I will areas. I will Yes, ask sir. only the answer questions related to CVT for others. Since you have asked the question, so I will not give you not I will not answer. I will answer your question for others. My humble request. This is we are opening only for CVT. So please do ask question related to CVT. Now, BCom honors is a course where you will be given specific knowledge of a particular subject in which you are going to take honors degree. When you will go for BCom honors, in third year, you have to decide whether you are going to take finance, you are going to take taxation, you are going to take accountancy as a specialized degree, and in which you will be given a degree of honors. That is specific knowledge. Any past course means you will be having a basic knowledge of accountancy, basic knowledge of finance, basic knowledge of marketing, basic knowledge of everything. There will be no specialized papers in your any of the years. I hope I have given the answer. Yes, sir. Thank you so much, sir. Next question, please. Please do ask, use this opportunity. I keep getting a lot of messages on WhatsApp. It is not easy to write everything on WhatsApp. सर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी, जो 5 सब्जेक्ट रहेंगे बेसिकली? अगर मुझसे आप पूछेंगे साइंस का बच्चा है और अगर उसको स्पेसिफिकली साइंस में ही जाना है तो उसे जनरल टेस्ट में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसे अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे दिमाग लगाना चाहिए। एक लैंग्वेज भरना है, लैंग्वेज केवल उसके लिए क्वालिफाइंग है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज उस बच्चे के लिए क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज के मार्क्स उसके ऐड नहीं होंगे साइंस के कोर्सेज में। अब अगर उसको अपना ऑप्शन ओपन रखना है कि कल को वो बीएमएस भी कर सकता है, बीकॉम भी कर सकता है, इको ऑनर्स भी कर सकता है, इस तरह से कोई उसके मन में थॉट है तो पक्का उसे जनरल टेस्ट साथ में भर देना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइडियली उसको भरना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी उसके पास है। एक लैंग्वेज पक्का डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि लैंग्वेज एक क्वालिफाइंग पेपर है उसके लिए। इसके साथ अगर वो चाहता है कि मैं अपना इको ऑनर्स या बीएमएस जैसे ऑप्शन या जर्नलिज्म जैसे ऑप्शन को ओपन रखना चाहूँ, कोई बच्ची हो सकती है कि मैं फिजिक्स ऑनर्स करती हूँ, नहीं होता तो मैं मास कॉम कर लूंगी, जर्नलिज्म कर लूंगी, ये कोर्सेज है डीयू में, तो उस केस में उसको अपना जर्नल टेस्ट को ओपन रखना चाहिए। जी सर, मैं थोड़ा सा पर्सनली ये पूछना चाह रही थी कि मेरी खुद की ही बच्ची है इस बार 12th में। हाँ जी मैम, तो वो आपको डिपेंड करता है कि देखिए मैम, क्या कॉम्बिनेशन चाहिए वो मैंने बता दिया। अब आपकी बच्ची को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो तो बच्चे की जब पर्सनल नहीं सर, काउंसलिंग। जैसे वो बीटेक के लिए ट्राई कर रही है, जेई मेन वगैरह का, तो हाँ मैं एक ये चीज भी सोच रही हूँ कि भाई मान लो जेई मेन में अगर बच्चा नहीं वो हो हाँ, पाता तो तो फिजिक्स फिर केमिस्ट्री बच्चे मैथ्स को तो कहाँ बच्ची जाना पढ़ी है? रही है, उसको बोलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े और साथ में अपना एक लैंग्वेज देके पेपर दे, क्योंकि जनरल टेस्ट में फंस जाएगी तो उसका टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके प्लीज। सर सिमिलरली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि 1 लैंग्वेज 2 डोमेन एंड एक मैथ्स ऑनर्स के लिए जरूरी है, हाँ अगर बच्चा डोमेन में 3 भर देता है तो उसका कोई एडवांटेज भी है है, उसे? एकदम एडवांटेज है, क्योंकि बेस्ट ऑफ ओके। दोज टू लगेगा। अगर उसने 3 भरा है तो उसमें से बेस्ट लगेगा। सपोज बच्चा जनरल ओके। टेस्ट नहीं भरता है, वो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, वो इको ऑनर्स करना चाहता है, उस केस में उसका एक मैथ्स का मार्क्स लगेगा, एक इंग्लिश का मार्क्स लगेगा, और जो उसने 3 डोमेन भरे हैं उसमें से बेस्ट 2 के मार्क्स लगेंगे। तो इसलिए अगर वो बच्चा जनरल टेस्ट नहीं भर रहा तो उसे जरूर बोलें कि वो अपने तीनों डोमेन भरे, क्योंकि उसने साल भर पढ़ाई है, उसके फेवर में होगा तीनों डोमेन भरना। राइट सर, राइट राइट। तो अगर सिर्फ पास कोर्स में जाता है, मे बी कई बार होता है ना कि कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो बीकॉम प्रोग्राम कर लेता है, तो हाँ, उस केस में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं नहीं है, होगी ना? बिल्कुल नहीं है। पास कोर्स में भी जनरल टेस्ट के रिक्वायर, ओके। जनरल टेस्ट जस्ट के थ्रू भी जा सकता है, जनरल टेस्ट के ऑप्शन है, लेकिन डोमेन बेटर ऑप्शन होगा। क्यों जनरल टेस्ट पढ़ा रहे हैं उसको? हाँ, वही वही तो सर, जनरल टेस्ट का रेलेवेंस क्या है, मतलब किस रेलेवेंस ये है कि सब्जेक्ट का अगर बच्चे? बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं जर्नलिज्म में भी जा सकता हूँ, मैं मास कॉम में जा सकता हूँ, मैं बीएमएस ओके। में जा सकता हूँ, मैं बीएफआईए में जा सकता हूँ, वो वाले कोर्सेज उससे छूट जाएंगे अगर वो जनरल टेस्ट नहीं भरेगा। राइट सर, राइट राइट ठीक है, राइट। तो अगर उसको ठीक है। दिमाग में एकदम क्लियर कर ले, देखिए अब इस लेवल पे आके बच्चे को अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आज भी क्लियर नहीं है तो वो बहुत दिक्कत में रहेगा, ना बच्चा इधर का रहेगा ना बच्चा उधर का रहेगा।
मुझसे Right, sir, पूछिए, right. मेरा खुद का बेटा 12th में है, अब मुझे क्लियर होना पड़ेगा कि हाँ मुझे उसे ऑनर्स कोर्सेज कराने हैं, या मुझे कोई भी ग्रेजुएशन कराना है, या मुझे उसको बीएमएस वगैरह कराना है। अब चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। अगर अब 1 महीने बाद एग्जाम है, अगर अभी भी हम नहीं क्लियर करेंगे कि हम सब कुछ ओपन रखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा बच्चा नुकसान में रहता है। Right, sir, right. राम कुमार जी नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, प्लीज ये प्लेटफॉर्म आप लोग के क्वेश्चन पूछने के लिए, जो भी पूछेंगे मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। प्लीज आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, क्योंकि आज मैं कोई लेक्चर लेने नहीं जा रहा, केवल मैं क्वेरीज हैंडल करने के लिए आया हूं। तो प्लीज क्वेश्चन सर यस। सर अभी जैसे आपने रिसेंटली बताया, सर मान लीजिए कि बच्चा 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ता है, एक लैंग्वेज भर देता है, और जीटी में उसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो माइट भी हम ये बोल सकते हैं कि जीटी अगर वो ढंग से फिलअप बस कर देता है बट अटेम्प्ट अच्छा नहीं करता, तो वो काउंट मतलब एज अ वो एडवांटेज मान सकते हैं अगर कि वो हाँ मैं ढंग आपको से ना बता दे रहा हूँ, परफॉर्म ठीक है, कर। मैं समझ गया आपका जी क्वेश्चन। पहली बात जी ये सर। जानिए, सपोज अगर उसका एक कोई ऐसा कोर्स है जिसमें लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन लगने हैं, सपोज ऐसा कोई कोर्स है, ठीक है, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन लगने हैं, जैसे बीकॉम पास है। अब लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन लगने हैं, और बच्चे ने दे रखा है लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। इस केस में जनरल टेस्ट के उस पर क्या मार्क्स आए, उसका उसके सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके जनरल टेस्ट के मार्क्स से इसके एवरेज एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके डोमेन के मार्क्स लिए जाएंगे, उसके लैंग्वेज के मार्क्स लिए जाएंगे, और ऐड करके उसकी मेरिट डिफाइंड होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ जो टू पूछ रहे हैं, ये कहाँ एप्लीकेबल, मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल हो हाँ सकता अब है ना? सपोज सपोज अब देखिए, मान लो वो इको ऑनर्स में जा रहा है, आप लोग के एग्जाम्पल इको ऑनर्स में जा रहा है। अब इको ऑनर्स क्या कहता है? इको ऑनर्स कहता है लैंग्वेज मैथमेटिक्स +2, और आपने 3 डोमेन भर रखे हैं। आपने सपोज कॉमर्स का बच्चा है, उसने लैंग्वेज ले लिया, मैथ्स ले लिया, और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी तीनों भर दिया, क्योंकि 5 तो भर सकता था। अब उसके लैंग्वेज के मार्क्स लगेंगे, मैथ्स के मार्क्स लगेंगे, प्लस जो 3 डोमेन भरे हैं उसमें से बेस्ट 2 के मार्क्स लगेंगे। समझ रहे हैं बात? ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर लीजिए। हाँ डॉक्टर यस साहब, यस। एक स्टूडेंट से गलती से उसने मैथ्स भर नहीं पाया वो। कोई बात नहीं, अभी करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसको बोलिएगा भर देगा। करेक्शन विंडो ओपन होगा तो वो मैथ्स के मार्क्स भर देगा। वैसे जिस दिन सीयूटी का फॉर्म आया था, उसके अगले दिन ही मैंने कहा था जल्दीबाजी में फॉर्म ना भर। जल्दबाजी में। मैंने सबको लाइव सेशन लेके बताया था जल्दीबाजी में फॉर्म ना भरें। लेकिन अगर किसी बच्चे ने भर दिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भर दिए हैं, कोई बात नहीं है, अभी करेक्शन विंडो ओपन होगा, उस केस में बच्चा सब्जेक्ट में करेक्शन कर पाएगा। ठीक है सर। थैंक्स डॉक्टर साहब। शिवानी जी सर आपका क्वेश्चन प्लीज। सर आप ये रिपीट कर सकते हैं अभी बेस्ट 2 वाला जो आपने कहा? मैंने कहा कि अगर कहीं पे 3 डोमेन की जरूरत है और बच्चे ने 4 डोमेन भरा है, तो बेस्ट 3 लगेंगे, उसमें से जो बेस्ट 3 होंगे वो लगेंगे। और कहीं पे 2 डोमेन की जरूरत है और बच्चे ने 3 डोमेन भरा है, तो उस केस में उस तीनों में से जो बेस्ट 2 होंगे वो लगेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आईफोन संगीता, इफ आई एम करेक्ट, या प्लीज आस्क योर क्वेरी। No, sir. I just wanted that query only. So, I ओके mean, it's clear to me. Thank you so ओके much. ओके, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे रोज बच्चे कुछ ना कुछ पूछते होंगे। आप अगर क्लियर होंगे तो आप बच्चों को क्लियर बता पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मैं डायरेक्ट बच्चों के पास जुड़ के उनको अपनी एक्सपर्टीज नहीं देना चाहता, क्योंकि आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छा से समझ पाते हैं। इसलिए मैंने लिखा था कि मैं ये जो लिंक है वो बच्चों को ना फॉरवर्ड करें, आपको उनके हैंडल करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम प्लीज। सर एक डीयू की रिक्वायरमेंट थी ना कि जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं वही ऑप्ट करने चाहिए। इज इट स्टिल द सेम? यस इट इज स्टिल द सेम। आपके पास जो डीयू, जो आपके 12th में सब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो 12th में सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट आप सीयूटी में भर सकते हैं एज पर डीयू। नाउ एक और ऑप्शन है, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपके पास है जो 12th में आपके पास है लेकिन वो सीयूईटी में ही नहीं है, सीयूईटी में है ही नहीं वो सब्जेक्ट। उस केस में उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सपोज कोई बच्चा है, उसके पास एफएमएम नाम का एक सब्जेक्ट है।
अगर एफएमएम नाम का एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सीयूईटी में एफएमएम नाम का सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उस केस में बच्चा क्या भर सकता है? अकाउंटेंसी। सेम वे अगर किसी बच्चे के पास 11-12 में स्टैट्स है, 11-12 में सीबीएसई में एक सब्जेक्ट है स्टैट्स, शायद आप लोग को नहीं पता, जैसे मैथ्स होता है वैसे एक स्टैट्स भी एक सब्जेक्ट है, कुछ बड़े चुनिंदा स्कूल में चलता है। तो अगर किसी बच्चे ने स्टैट्स लेके 11-12 किया है, अब क्योंकि स्टैट्स नाम का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं सीयूईटी में, तो उस केस में बच्चा मैथ्स भर सकता है। सेम वे एक मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट है सीयूईटी में, सॉरी उसमें सीबीएसई में, तो अगर बच्चे ने 11-12 में मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट लेके पढ़ा है और क्योंकि वो सीयूईटी में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उस केस में बच्चा बिजनेस स्टडी भर सकता है। तो वो कहते हैं मैपिंग करना है रिलेटेड सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है और फिजिक्स सीयूईटी में है, आप फिजिक्स नहीं भर सकते। आई होप मैं समझा पाया आपको। यस सर। सर पर जैसे से समवन वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम साइंस का बच्चा है और वो से इंग्लिश की तरफ जाना चाह रहा है, तो उसका कैसे मेरिट डिसाइड होगा? उसने हाँ फिजिक्स जी, मैं केमिस्ट्री बता देता हूँ। अगर वो साइंस का बच्चा है, वो अपना इंग्लिश फिल करेगा और अपने जो सब्जेक्ट उसने 12th में पढ़े हैं वही फिल करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है। और उसी में जो, क्योंकि साइंस इंग्लिश ऑनर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? इंग्लिश प्लस एनी 3। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश प्लस एनी 3। अब वो एनी 3 में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस है, तो वो एनी 3 भर देगा और उसके जो मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस में मेरिट डिफाइन होगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, यस आई एम मैम। सॉरी, लेकिन आप फिर से एक बार इंग्लिश का एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर पैटर्न फिर से बता सकते हैं मैं क्या? बता रहा हूं, इंग्लिश ऑनर्स के लिए रिक्वायरमेंट है इंग्लिश प्लस एनी 3। अब वो एनी 3 जो है वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी हो सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, या हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकता है। बस रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपके पास 12th में होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जो भी बच्चे के पास है वो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ेगा जो उसके पास 12th में है, और उसी के बेसिस पे इंग्लिश ऑनर्स की मेरिट बनेगी। So what is the minimum mark that a child is expected to get? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मिनिमम मार्क्स इससे आज के टाइम पे सिलेक्शन टॉप का होता है। टॉप में जो आप समझिए, हर बच्चा जब पेपर दे रहा है तो 250 नंबर के सारे पेपर हैं, समझिए। 250 नंबर इंग्लिश का है, 250 नंबर फिजिक्स का है, 250 नंबर केमिस्ट्री का है, 250 नंबर अकाउंटेंसी का है। 4 सब्जेक्ट हो गए बच्चे के पास, इंग्लिश प्लस एनी 3, हर के पास 4 है। 250 इंटू 4 1000 होता है। 1000 में से जो मैक्सिमम मार्क्स वाले बच्चे होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जिसके भी होंगे, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश वाले के हो, चाहे वो हिस्ट्री साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले के हो, चाहे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी के हैं, जो टॉप के बच्चे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन सीट, सपोज 400 सीट है तो जो टॉप के 400 बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। यहाँ पे एक मार्क्स नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिपेंड करेगा पेपर कैसा आया है। कई बार 600 में एडमिशन हो जाता है और कई बार 990 में नहीं होता, वो मेरिट बनती है उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या आप लोग को ये प्लेटफॉर्म यूज करने में मजा नहीं आ रहा? क्या मैं आपके क्वेश्चन के हैंडल नहीं कर पा रहा? प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। मैंने शुरू में बताया, आज मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ, आज मैं केवल आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने आया हूँ। सर यू आर बीइंग वेरी हेल्पफुल। अगर बच्चे कहीं से स्टडी मटेरियल कुछ अवेल करना चाह रहे हैं, तो वो कोई पर्टिकुलर बुक या स्टडी मटेरियल, कोई साइट? मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 तरीका है सीयूईटी में सक्सेस होने का, 2 स्टेप्स हैं सीयूईटी में सक्सेस, नॉट तरीका मैं बताऊंगा। प्लीज बच्चों को एकदम समझाइए, एक्सेप्ट फॉर जनरल टेस्ट, एक्सेप्ट फॉर जनरल टेस्ट उनको कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना है। पढ़ते हैं तो अपना समय वेस्ट करने के सिवा कुछ नहीं करते। मैं खुद सीयूईटी का पेपर बनाने गया हूं, बुलाया गया है, और मैं आपको बता रहा हूं, एनटीए की एकदम लाइन है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आएगा। अगर बच्चा एनसीईआरटी पढ़, देखिए, अगर वो 1.5 महीने एनसीईआरटी को देखेगा तो वो देख पाएगा, उसको याद होगा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये वाली लाइन थी, राइट साइड में नीचे की तरफ ये वाली लाइन थी, वो क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। अगर वो 4 किताबें देखना शुरू करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, वो नहीं कर पाएगा।
अब बात आती है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए केवल उसको मॉक पेपर करने हैं। ऑनलाइन मॉक पेपर 20-20 रुपए में अवेलेबल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एनटीए के वेबसाइट पे खुद उनके अपने पेपर भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा आपके पास है जिसको कि मॉक पेपर और करना है, और जितना मॉक पेपर करेगा, क्योंकि कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से। अब प्रैक्टिस करना है सो दैट कि स्पीड और एक्यूरेसी बच्चा मेंटेन कर पाए, उसके लिए केवल और केवल मॉक पेपर करना है, पढ़ना नहीं है। जितना कोई 10 करेगा, कोई 12 करेगा, 12 वाला 10 वाले से बेटर होगा, कोई 15 करेगा, 15 वाला 12 वाले से बेटर होगा। तो जितना मॉक पेपर करेगा बच्चा उतना अच्छा होगा। मॉक पेपर मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहिए तो आप खुद गूगल कर लीजिए। नहीं मिलता है अगर आपको, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट, मेरा हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने में, बेचने में मुझे डर लगता है, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ बेचने आया हूं। फिर भी अगर किसी का मन करेगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। नो डाउट वो पैसे पे अवेलेबल है, आपको अच्छा लगे तो खरीद लेना, और नहीं अच्छा लगे तो मैं किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करता, मेरा काम नहीं है वो। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया। Yes, sir. Thank you very much. थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर व्हाट अबाउट इंग्लिश एग्जाम? आपने कहा कि जनरल स्टडीज के लिए बाहर से करना है, हाँ जी, इंग्लिश का इंग्लिश के लिए कंटेंट केवल भी? बच्चे को एक किताब पढ़नी है, उस किताब का नाम है रेन एंड मार्टिन। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, topics English में they will be the same as it's सेम, आप रेन mentioned. एंड मार्टिन उठा के देख लीजिएगा। नहीं नहीं, आपको there are certain topics mentioned in the CUET syllabus. Should हाँ, we stick to those topics only? ओनली ओनली दोज टॉपिक्स, एकदम, उसके बाहर कुछ नहीं आता मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। So may I ask? यस यस प्लीज मैम, आप ही लोगों के Yeah, लिए आज मैं आया हूँ। yeah, Nikush Dhawan this side, sir. यस। एक क्वेश्चन है, डोमेन वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक अकाउंटेंसी, मैथ्स, so weightage is same followed like NCERT or something else is there in वेटेज CUET? मीन्स Topic wise weightage, कि इस subject चैप्टर से wise? इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से Yes, इतने yeah, क्वेश्चन no, आएंगे, नहीं number, मैम, ऐसा number, ऐसा marks, कोई marks. डेफिनेशन, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा अच्छा, डेफिनेशन सीबीएसई ने दिया है कि पार्टनरशिप इतने मार्क्स का है। पहली बात तो ना एनसीईआरटी ने भी नहीं दिया है, तो हाँ कोई वेटेज CBSE, like एनसीईआरटी ने CBSE. नहीं दिया है। सीबीएसई ने दिया है कि हम 12 हम्म, नंबर का ये पूछेंगे, 15 नंबर का ये पूछेंगे। एनसीईआरटी में ऐसा कोई वेटेज नहीं है। इसी तरह ये सीयूईटी में भी ऐसा कोई वेटेज नहीं है। हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन फंडामेंटल से मिल जाए, या हो सकता है आपको 50 क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से ही मिल जाए। उससे क्या फर्क पड़ता है जब आपने पढ़ा हुआ है तो। आप समझ रहे हैं children क्या कहना focus चाह more generally on more weightage रहे हैं? chapters. नहीं, तो ऐसा वेटेज है ही नहीं, कोई वेटेज Right, नहीं है। right, got it, clear, sir. कंपटीशन Thank के you. एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपटीशन के, ये एज ए टीचर हम लोग को पता होना चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज वेटेज नहीं होता। ये केवल आपके स्कूल और बोर्ड एग्जाम में होता है। Okay, sir. Thank you. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्लीज डू आस्क द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हाँ जी। काइंडली रिपीट द बुक, नेम ऑफ बुक फॉर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन बुक आती है, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर स्कूल के लाइब्रेरी में होती है, 100-150 रुपए की मार्केट में आती होगी। मोर देन एनफ है फॉर कंटेंट पढ़ने के लिए, और प्रैक्टिस करने के लिए जितना ज़्यादा मॉक पेपर करेंगे उतना खुश रहेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, केवल और केवल मॉक पेपर करने हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जब आप क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे तो मुझे सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। सुनीता जी प्लीज आपका क्वेश्चन, एंड प्लीज आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि ऐसा सिली क्वेश्चन क्यों है। इसीलिए मैंने पेरेंट्स को इसमें नहीं डाला, सो दैट कि आप मन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकें। सुनीता जी आपका क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। स्टूडेंट्स का क्वेरी मोस्टली यही रहता है कि कुछ पोर्शन हमारा एनसीईआरटी से डिलीटेड होता है क्लास 12 सिलेबस में, हाँ जी। सीबीएसई, तो दे आर आस्किंग कि जो डिलीटेड पोर्शन है वो आएगा, जैसे लाइक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैं अकाउंट्स। रिपीट कर दे रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जी सर। एनसीईआरटी उठा के देखिए, जो लेटेस्ट है, ओके जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है और जी जो सर। सीयूईटी ने सिलेबस दिया है वो ओके एकदम सेम है इस बार। जी सर, जी सर। तो ओके इसलिए कोई आपको टेंशन, आपको सीबीएसई का करिकुलम क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके
ओके सर। एनसीईटी में उन्होंने अपना करिकुलम डिफाइन करके वेबसाइट पे डाल दिया है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप लोग को अगर दिक्कत है तो ये देखिए, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट है CUET.NTA.NIC.in। यहाँ पर आप जाते हैं, इंफॉर्मेशन में जाते हैं, सिलेबस में जाते हैं, तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस है। आप उसे डाउनलोड करेंगे और जब आप देखेंगे सिलेबस को, तो वो पूर्णतया आपका एनसीईआरटी है और कुछ नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मैं कुछ भी, जितना मेरा संभव है, मैं आपका आंसर देने की पूरा कोशिश करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर अभी आपने कहा था देयर 150 marks in each subject, right? But then the children will be attempting only 40 questions of 5 marks प्लीज, each. आप पुराने जमाने में जी रहे हैं। वो दिन गए जब 50 क्वेश्चन आते थे और बच्चे को 40 करने थे। प्लीज, आपने शायद इस बार की मेरी वीडियो नहीं देखी। बहुत चेंजेज हो गए हैं। इस बार 50 क्वेश्चन आएंगे और बच्चे को पूरे 50 करने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बार 50 क्वेश्चन आएंगे और बच्चे को पूरे 50 करने हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा ओरिएंटेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, एक सेशन ले चुका हूँ, उसे जरूर देखें। Okay, sir. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्लीज सर ये अभी यस। अभी तो सर जैसे आप ये मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रही थी आपसे कि जब ये एग्जाम वगैरह हो जाएंगे तो एक सेशन सा फिर आएगा, तो क्या तब भी आप थोड़ा सा कुछ ले पाएंगे आगे हमें सजेस्ट करने के लिए? एक मैं सेशन थोड़ा फिर सा आएगा मतलब नहीं समझा मैं आपका क्वेश्चन। सर जैसे कि जब रिजल्ट वगैरह आ जाता इनका आ हम्म। जाएगा, हम्म। तो कई बार ऐसा होगा कुछ बच्चों का हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा, फिर तो कौन, आगे चार जाके दो कॉलेज मिल रहे हैं, इसमें से कौन सा लें कौन सा ना लें? हाँ कुछ कुछ या फिर हमें आगे भी कुछ, जैसे आप कह रहे थे कि कुछ सेशन भी लेंगे कि चॉइसेस पूछी जाएंगी, तो ये सारी चीजें भी थोड़ी सी गाइड करने। आप शायद नहीं जानते, जितने भी हमारे फील्ड के लोग हैं, शायद मैं उनमें सबसे ज्यादा सेशन लेने की कोशिश करता हूँ। शायद जो लोग जुड़े हैं, प्लीज मुझे बताएं क्या सही है या गलत है। मैं कोशिश करता हूँ हर स्टेप पे आपकी हेल्प कर पाऊँ। क्या मैं ट्रू सही सर, बोल रहा हूँ? ट्रू, वेरी ट्रू सर। तो आई डोंट थिंक कि आपको एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी होनी चाहिए थी। मैं कोशिश करता हूँ जहां भी मुझे लगता है, जब मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, फोन आने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगता है अगर एक पर्सन का ये कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। या तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, या तो मैं उसके लिए जरूर सेशन लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। नहीं सर, एक्चुअली मैं पहली बार जुड़ी हूँ ना, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज अपना। ठीक है। हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे ग्रुप जो एडिटरी का है उस पर लिंक आता रहता है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डॉक्टर साहब, वन क्वेश्चन मोर। यस सर प्लीज। डॉक्टर साहब, अभी नेशनल लिटरेसी अपना कोई टेस्ट था अभी ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, एंड हाँ ठीक था। उसका तो 8 तारीख उसकी लास्ट डेट है, अभी आप अभी भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आज हमने किया था तो उसमें वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। उसमें उन्होंने क्रेडेंशियल वगैरह सारा दे भी दिए, भर भी दिए, तो भी नहीं उसका आंसर आ रहा कुछ। सर वो सरकारी सिस्टम है और नहीं कर जी। रहे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये पता हाँ है हाँ। कि वो एनसीएफसी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। 8 तारीख जी जी उसकी लास्ट डेट है। रजिस्टर जी। करके आपको वो एग्ज़ाम देना है। तो अब सरकार का आपको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी इतना आ गया हो कि शायद वो 8 तारीख तक उसी को कैटर कर पाएँ। तो अगर, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहिए। जी 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 मैंने आप लोगों को लिंक भेजा हुआ है। हो सकता जी है जी। आज आपने रजिस्टर किया था। आज रजिस्टर किया था डॉक्टर हाँ, तो बस वही आप समझिए सर, सरकार से अगर आप उम्मीद करें कि आज किया था और आज ही रिप्लाई आ जाए, कल तक वेट कर लीजिए, उम्मीद है शायद आ जाएगा। साहब। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Excuse me, sir. यस मैम, यस प्लीज। Sir, do you feel someone who plans to change subjects in graduation, DU में especially, हम्म। और अपने core subjects में exam दे रहा है, will be हम्म। at a disadvantage compared to someone जिसका वो नहीं मैम, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि हो सकता है कि फिजिक्स का पेपर ऐसा आए और फिजिक्स में सबके ही कम नंबर आए, ऐसा हो सकता है, और अकाउंटेंसी का पेपर ऐसा है। लेकिन
उस बच्चे को और एडवांटेज मिला है कि वो 2 साल उन बच्चों के साथ पढ़ा है जो टॉपर हुआ करते थे स्कूल का, तो उसको एक माहौल मिला है जिसमें वो टॉपरों के साथ पढ़ा है, और दूसरा बच्चा जो ह्यूमैनिटीज की क्लास में था उसमें 40 में से 30 बच्चे वो थे जो वीकर थे। तो प्लीज़ आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके सोचते हैं कि ये बच्चे का डिसएडवांटेज है, तो ये उसी तरह है जैसे हम आरक्षण के विरोध में कुछ लोग कहते हैं आरक्षण जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण खराब है। ये पर्सनल व्यू हो सकते हैं, मुझे लगता है ये सिचुएशन है। और बच्चे को ने जब लिया साइंस तभी उसे पता था वो साइंस, अब आप साइंस के लिए पढ़ रहा था। अब वो बच्चा अगर ये करना चाहता है कि मैं साइंस भी करूं और साइंस ना हो तो मैं इको ऑनर्स भी कर लूं, तो आप सोचिए, आप एक तरफ देखेंगे कि हाँ इस बच्चे के लिए डिसएडवांटेज है क्योंकि हो सकता है बिजनेस स्टडी में ज़्यादा मार्क्स आ जाए, फिजिक्स में कम आए, बिजनेस स्टडी वाले बच्चे का एडमिशन हो जाए, फिजिक्स वाले का ना हो क्योंकि उसका पेपर टफ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये भी देखिए कि वो बच्चा जो कॉमर्स पढ़ रहा था उसका जो जेईई में एडमिशन नहीं हो सकता ना। तो कहीं एडवांटेज और कहीं डिसएडवांटेज तो होगा ही, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जी क्या मैं सर। सही हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हर बच्चे हर जगह एडवांटेज अगर एक ही बच्चे को मिलना शुरू हो जाएगा तो बेचारे कॉमर्स वाले और ह्यूमैनिटीज वाले तो फिर कहीं के भी नहीं बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्लीज कुछ भी क्वेरी हो किसी भी तरह के, सुनीता जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, या तो हैंड डाउन कर लीजिए या अपना क्वेश्चन पूछिए। बाकी और किसी के मन में है तो मैं क्वेश्चन लेने को तैयार हूँ। मैं केवल और केवल क्वेश्चन लेने के लिए जुड़ा हूँ। नहीं है किसी के मन में क्वेरी? क्या मैं अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है सर। ठीक है तो आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा या मैं सेशन को क्लोज कर दूं, जैसा आप एक्सक्यूज मी कहें। सर। यस यस विनोद जी प्लीज। सर ये क्या बच्चों के लिए सर डोमिसाइल की भी जरूरत पड़ेगी? बच्चे में से किसमें? पूछ रहे थे सर, इसमें डोमिसाइल मांग रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, डीयू में डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं होती अनलेस अनटिल आपको रिजर्वेशन लेना हो, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन जो है स्टेट बेस्ड हैं, तो अगर वो पर्टिकुलर कास्ट किस कैटेगरी में आती है वहीं हाँ पे हाँ हाँ। जरूरत पड़ेगी। अगर आपको रिजर्वेशन नहीं लेना है तो डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर ओबीसी गुड इवनिंग रिजर्वेशन सर। जो है उसमें क्या नाम है, नेशनल वाला ओबीसी नेशनल लिस्ट में होना सर्टिफिकेट। चाहिए बच्चा, ओबीसी के नेशनल लिस्ट में होना चाहिए। अच्छा सर, और सर जो उसमें पहले की जो डेट थी उसमें ये भी बोला हुआ है कि जो नॉन क्रीमी लेयर का कोई सर्टिफिकेट है वो मतलब 31 मार्च के बाद वाला होना 31 मार्च, चाहिए। तो अभी जब आप अपलोड करेंगे तो आप पुराना करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हाँ हूँ, अभी जब अपलोड करेंगे तो पुराना करेंगे। एडमिशन के जी, टाइम पे नया दिखाना पड़ेगा। जो ईयरली शायद बनता है मेरे ख्याल हाँ, से। क्योंकि नॉन क्लियर ईयरली बनता है। जी सर। अगर आप नया नहीं दिखा पाएंगे तो बच्चा जनरल में ट्रीट किया जाएगा। ओके सर। गुड इवनिंग सर। हम्म। यस। सर बायोटेक में अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है उसमें मैथमेटिक्स होना कंपलसरी होता है डीयू में? मैं बीएससी बायोटेक की बात कर रहे हैं आप डीयू में? हाँ जी सर। आप देखिए, मैं साधारण तरीका बता देता हूँ कहाँ पे क्या कंपलसरी है नहीं है, इसको किसी सुनील त्रिपाठी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ सीयूईटी के वेबसाइट पे जाइए, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट है, इसको क्लिक करिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप सपोज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि डीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप इसको यहाँ क्लिक करिए। यहाँ पे डीयू का कहीं नाम आएगा, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टिक करिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। आप उस कोर्स को ढूंढिए जो कोर्स आप ढूंढ रहे हैं। जैसे आपने कहा बायोटेक, जैसे ही सपोज मैं रशियन ढूंढ रहा हूँ, कोई संस्कृत ढूंढ रहा है, प्लीज़, क्योंकि अभी आपने एक कोर्स पूछा कोई और दूसरा कोर्स पूछेगा। सच्चाई ये है कि सारे कोर्सेज मुझे भी नहीं रटे हुए। आपको सीधे यहाँ जाना है और यहाँ पे जाके बायोटेक ढूंढना है। देखिए कि पहले बायोटेक यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। देखिए बीएससी बायो मेडिकल दिख रहा है, केमिस्ट्री दिख रहा है, बॉटनी दिख रहा है। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बायोलॉजिकल साइंस दिख रहा है बीएससी में। उसके बाद बीएससी में केमिस्ट्री दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, एनवायरमेंटल साइंस दिख रहा है, फूड टेक्नोलॉजी दिख रहा है, जियोलॉजी दिख रहा है, होम साइंस दिख रहा है। उसके बाद बीएससी में इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी दिख रहा है, फिजिक्स दिख रहा है, पॉलीमर साइंस दिख रहा है। उसके बाद स्टैट्स दिख रहा है, जियोलॉजी दिख रहा है, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिख रहा है, बीटेक बायोकेमिस्ट्री दिख रहा है, बीटेक अप्लाइड फिजिक्स दिख रहा है,
उसके बाद होम साइंसेस दिख रहा है, लाइफ साइंसेस दिख रहा है, मैथमेटिकल साइंस दिख रहा है, बीएससी फिजिकल एजुकेशन दिख रहा है, बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री दिख रहा है, ठीक है, साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है और बीकॉम शुरू हो गया। क्योंकि मुझे पता था कि बायोटेक नाम का कोई कोर्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर होता भी, मान लो हो सकता है कि नया ऐड हो गया हो या पहले से भी हो, मुझे नहीं पता हो, सब कुछ मुझे जरूरी नहीं है कि पता हो, तो अगर होता तो उसके सामने लिखा होगा कि हाँ जी मैथमेटिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे फिजिक्स फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसी तरह उस कोर्स के सामने भी पक्का लिखा होगा। ठीक है सर, थैंक यू तो वेरी ऐसे मच। ही देखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, मैं पूरा प्रोसेस रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले तो आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करना है। सपोज आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोलना है यहाँ से। उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, उसका कोर्स देखना है, और वहाँ पे लिखा है कि क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए प्लस इंग्लिश चाहिए प्लस हिंदी चाहिए प्लस जनरल टेस्ट चाहिए, काम खत्म। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स का आप ढूंढ सकते हैं, बहुत आराम है, आपको किसी सुनील त्रिपाठी की जरूरत नहीं होगी। आई होप मैं समझा पाया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मास मीडिया स्टडीज इज आल्सो सब यस domain. मैम, जर्नलिज्म नाम का सब्जेक्ट है, डीयू में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, 5 कॉलेजेस में है, मेनली गर्ल्स कॉलेजेस में है, एक ही बॉयज़ कॉलेज है, बाकी सब गर्ल्स कॉलेज है, बहुत अच्छा है। उसके लिए अगर मैं सही हूँ तो इंग्लिश प्लस NE3 मांगा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, एक मैं सही हूँ, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ सारा कुछ याद नहीं रहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो बेसिक बेसिक कोर्सेज हैं वो तो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उसको प्लीज आप लोग ऐसे ही जाके, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने कहा BA मास मीडिया, अभी दिखा देता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स दिखा मुझे, उसके बाद यहाँ पे मैं गया, ह्यूमैनिटीज दिखा, जर्नलिज्म ये देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे इन्होंने मांगा क्या है, इंग्लिश प्लस NE3, आप ये जा सकते हैं, या इंग्लिश प्लस सेक्शन 3, ये 2 कॉम्बिनेशन है जाने का। अब अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं बच्चे को कहूंगा कि इंग्लिश भरो, जर्नल टेस्ट भरो, प्लस NE3 भर दो। फायदा क्या होगा, जब मार्क्स आएंगे तो देखेंगे जिसमें ज्यादा होगा, इंग्लिश प्लस NE3 वाला ज्यादा होगा तो वो लगा देंगे, और इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट ज्यादा होगा तो वो लगा देंगे। तो उन्हें स्ट्रेटेजी सर बनानी तो मास पड़ेगी बच्चे को। तो मास मीडिया स्टडीज इज आल्सो वन डोमेन हाँ सब्जेक्ट। नहीं, मैं मास मीडिया अगर मास बच्चे मीडिया के स्टडीज, पास, हाँ जी, मास मीडिया 12th में है। 12th में मास मीडिया स्टडीज, हाँ 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 जी। हाँ, वो ले सकता है मास मीडिया। बच्चे डोमेन में है, इस बार CUT में डोमेन में हटाया नहीं है उस सब्जेक्ट को, मेरे समझ से तो हटा दिया था, अगर मैं सही हूं तो। अगर मुझे जहां तक याद आ रहा है, फिर थोड़ा भी सा वही डाउट हो रहा था, मैं दिखा वही देता डाउट हो हूँ। रहा था मास कि मीडिया जहां तक मुझे आइडिया है, मैं फिर हो सकता है मैं फिर गलत हूँ, इसलिए मैं सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सारे लैंग्वेजेस हैं, ये सारे लैंग्वेजेस है, फिर अकाउंटेंसी, दिस। आप देखिए इसमें मास मीडिया है, मैंने नहीं हटाया है, तो मास मीडिया बच्चा ले सकता है डोमेन की तरह, एकदम ले सकता है, मास मास मीडिया मीडिया। है। ठीक है, जी 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 ठीक है। जी, थैंक यू सर। हाँ, कुछ 6 सब्जेक्ट हटाए हैं वो, जैसे उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें लीगल स्टडीज है, इस तरह करके 6 सब्जेक्ट हटाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या मैं आप लोग के सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाया? यस सर, यस सर। क्या मैं वेरी अब क्लियर, बहुत क्लियर हो गए हैं सर। बहुत सारे डाउट्स थे जो हाँ, अब क्लियर हो गए हैं। तो यही है, इसीलिए मतलब आपका सेशन अटेंड करने का मतलब हमेशा छोड़ने का मन नहीं करता, कि कुछ मैं ना कुछ लर्निंग ही है और काफी सारा क्लैरिटी बहुत मिलती है सर। थैंक यू सो मैं मच। उम्मीद क्यों यस मैं सर, ट्रू। बोलिए मैम, आप कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर मैम। इट वॉज अ अच्छा, बिग हेल्प। थैंक वो यू जो मैम, लॉट थैंक यू वेरी फील मच कर मैम। रहे होते हैं, इट हेल्प्स व्हेन वी लिसन टू यू। क्योंकि मैं 20 साल टीचर रहा हूँ तो मैं समझ पाता हूँ कि टीचर्स के पास क्या प्रॉब्लम आती है और बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है। उसी को मैं, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग का साथ है, आप लोग का थोड़ा सा आशीर्वाद है, आप लोग का थोड़ा सपोर्ट है, मोटिवेशन है, इसलिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेशन के बाद जिस भी ग्रुप से आपको लिंक मिला है उस पर एक कमेंट जरूर लिखना, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम लोग जुड़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें देश के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोग के कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। थैंक यू, थैंक्स डॉक्टर साहब, थैंक थैंक्स अ यू, लॉट हैव अ डॉक्टर गुड साहब। थैंक यू, सेशन सर। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू।